Okay, so PGBP is covered under section 28 to 24 of the Income Tax Act, and this particular section covers all the incomes and expenses which are specifically related to the business and profession. So there are few sections like section 29 which gives the format for calculating the PGBP income. Okay, it's very easy. We will do two questions today and then you will understand how we can calculate the PGBP income. It always starts with the profit as per P&L account or income and expenditure account. So you know these accounts, right? So this account information will be given. Along with that, and some additional informations will also be given. In that case, you have to follow this particular format that take the profit from the profit and loss account. Then you have to add all the expenses which are debited, which are not allowed to be debited, right? जो नहीं होने थे, जो होकर आपकी इनकम रिड्यूस हो गई है, आप उनको वापस ऐड कर दोगे. सिमिलरली आप उन सारी इनकम्स को ऐड कर दोगे जो करी नहीं गई हैं. फिर जो एक्सपेंसेस डेबिट होने चाहिए थे नहीं हुए हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ये इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगी. लेस इनकम्स विच आर क्रेडिटेड बट आर नॉट अलाउड टू बी क्रेडिटेड. अलाउड नॉट अलाउड दिस इज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, इक्वल्स टू योर इनकम. सो सेक्शन 29 आपका फॉर्मेट देता है, मेथड देता है कैलकुलेट करने का. उसके बाद there are some subsections under section 28 which specifically talks about all the incomes which are allowed to be taxable under this particular head. ठीक है, सो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन ही आपके सिलेबस में है, बाकी सारे इतने डिटेल्ड आपके सिलेबस में नहीं है. सो सिर्फ आप हाईलाइटेड ही देखना. इन शॉर्ट, एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन इट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, इसके बाद डिडक्शंस थी और डिडक्शंस आपकी गिवन है अंडर सेक्शन 30 to 37. 30 is about the expenses on building which is specifically used for PGB for business or profession. So इसमें आपके थे revenue expenditures and capital expenditures. Capital expenditures आपको नहीं लेने हैं but उन पे depreciation is allowed for both the owner and the tenant. Revenue expenditure is allowed for both of them. Then repairs and insurance of machinery, plant and furniture. इसमें depreciation is allowed only for the owner, not for the tenant, and revenue expenditures are allowed for both. ठीक है, and these are some general deductions which are allowed. So there are few conditions which have to be satisfied in order to allow certain expenses to be reduced from the incomes. It should be revenue in nature. It should specifically be related to business, profession, or vocation. It should not be personal in nature. It should be a charge against profit. It should not be prohibited under any other law. It should have been carried out in the previous year and it should not be in the nature of under section 30 to 36, मतलब जो पुराना हमने अभी तक डिस्कस किया. ठीक है, and these are some of the examples which have been written. ठीक है, so let's do one question in this now. So this is first illustration. Mr. J submits the following P&L account for the year ending 31st March. It's 2021. ठीक है, I forgot to update it. So it's 31st March 2021 and we have to calculate his PGBP income. ठीक है, so देखो आपकी ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट गिवन है. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड दिस यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट गिवन है. यहाँ पे आपके सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिस्काउंट, ये सब गिवन है. एंड इसके अलावा आपकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय दिस, क्लोजिंग स्टॉक दिस. सो अब हमें इसकी क्या करनी है, पीजीबीपी इनकम निकालनी है. ठीक है, पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए आई एम जस्ट ओपनिंग, लेट्स ओपन एक्सेल. ठीक है, एक एक आइटम हम लोग देखेंगे और फिर करेंगे. ठीक है, हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, वी हैव टू स्टार्ट विद नेट इनकम. सो नेट प्रॉफिट से हमें शुरू करना है. नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,45,000. उसके बाद वो कहता है ऐड.
expenses which are debited but not allowed to be debited. ठीक है, बेसिकली आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली इस वाले टेबल में जो भी डेबिटेड इंफॉर्मेशन है, ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिट तो हो गए हैं बट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट दे आर नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड, तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो हम एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं जिससे वो हमेशा याद रहती है हमें. ठीक है, सो लेट्स रीड आउट द एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट. इसमें लिखा है ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. तो पहले ओपनिंग स्टॉक का देखते हैं. अब बस दिमाग में देखना नेट प्रॉफिट का ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या रिलेशन होता है. ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड, इसका मतलब ये हमेशा हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है ना. ये हमेशा माइनस होता है क्रेडिट से, तो हमेशा रिड्यूस करता है और वो कहता है कि ओवर वैल्यू इसकी जो ओवर वैल्यूएशन है उसकी वजह से 20% और हमारा कम हुआ होगा. ठीक है, सो हमें ये जो ओपनिंग तो क्वेश्चन आता है हमें निकालना है. तो ओवर वैल्यूड बाय 20% है कितना, 1,20,000 आपका अमाउंट है. तो आपकी ओरिजिनल, ठीक है, एक्सपेंसेस से पहले एक बारी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का कर लेते हैं ट्रीटमेंट. ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाय 20%, इसका मतलब 1,20,000 डिवाइड बाय 1.2, 20% है ना, तो 100 प्लस 20% ऑफ 100 120%, सो 1.2, सो 1 लाख. सो आपका एक्चुअल में 1 लाख होना चाहिए था और कितना लिखा है 1,20,000 क्योंकि 20% से ओवर वैल्यूड है. सो 1,20,000 माइनस दिस अमाउंट, सो 20,000 ओवर वैल्यूड है. दिस 20,000 एक्चुअल में शुड बी एडेड बैक. ठीक है, अब दिमाग में सोचो ना कि आपका 20,000 से अननेसेसरली नेट प्रॉफिट आपका कम हो गया. अब हमें इसे वापस डालना पड़ेगा. हमारा नेट प्रॉफिट एक्चुअल में 145 ना होके 165 होना चाहिए क्योंकि ओवर ओपनिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है. अगर अंडर वैल्यूड होता ना तो ये हम सब्ट्रैक्ट करते. अभी ओवर वैल्यूड है और हमेशा ओपनिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन होता है. ठीक है, तो ये 20,000 विल बी एडेड बैक. तो अभी यहाँ पे मैं बस लिख रही हूँ 20,000 ऐड होगा. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. अब देखो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का हमेशा रिलेशन पॉजिटिव होता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड है ना. अब ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू कम है, अंडर वैल्यूड है बाय 10%, मतलब 90% की वैल्यू गिवन है. तो अगर हम इसको 100% की वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, राइट. अंडर वैल्यूड है ना, तो बढ़ना चाहिए हमारा प्रॉफिट. तो हमारे यहाँ वैल्यू कितनी है 90,000, सो 90,000 डिवाइड बाय 0.9. ठीक है, 10% से अंडर वैल्यूड है ना, तो 100 माइनस 10%, 90%, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 लाख. सो एक्चुअल में 1 लाख होना चाहिए, है कितना 90,000, मतलब 10,000 का हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऐड कर देनी चाहिए सो दैट हमारा प्रॉफिट ठीक हो जाए. ठीक है, ऐड होगा बिकॉज ये अंडर वैल्यूड है. अगर ओवर वैल्यूड होता तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देती. ये क्लियर है सबको, ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा आएगा, आप लगा के चलना. क्लियर है ये सबको कि मैंने सबसे पहले अपनी प्रॉफिट की फिगर को ठीक किया है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है इसलिए मैंने ऐड किया है और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है इसलिए मैंने ऐड किया. हमेशा रिलेशनशिप देखना.
ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड आता है, क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड। क्लियर है ये सबको? आगे चलूं अब मैं। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरीज एंड, ठीक है अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ही कर रहे हैं हम पहले। Salaries and wages include 3,000 per month paid to Mr. J to himself. So this is not allowed. ठीक है, आप जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं वो अलाउड नहीं है। सो हो रही है तो ये अलाउड नहीं है। कितनी? 3,000 एंड वेजेस सबसे पहले, हाँ ये वाला, ठीक है। सो इसमें 3,000 पर मंथ अलाउड नहीं है। सो ये है एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड बट आर नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड। सो सैलरीज and wages, 3,000 per month, so 3,000 into 12, 36,000। ठीक है, उससे नेक्स्ट 20% of the telephone expenses are for personal purposes। ठीक है, इसका नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस ही था। 20% are for personal expenses, it means these expenses are not allowed to be debited। हमने कर रखे हैं पूरे पूरे, बट हम नहीं कर सकते इनको, तो इसका 20% will be added back। $80,000 है ना, इसका 20%, 16,000। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन कार है, दिवाली एक्सपेंसेस और डोनेशंस। ठीक है, ये तीन बचते हैं, तो अब हम बाकी का करते हैं अपना। टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारा हो गया है। फिर है मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ वाइफ। A medical of expenses of wife is also personal expenditure, so this will also not be allowed। So write down medical expenses of wife 20,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर द डिले इन पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। एनी काइंड ऑफ पेनल्टी इज नॉट अलाउड। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट penalty for late payments are not allowed, so the entire 5,000 will be added back। Next, sales tax paid, okay, car purchased, the car purchased is capital expenditure, it is not allowed to be reduced, so we will add this back। car purchased depreciation मिल जाएगा, but कार की वैल्यू नहीं रिड्यूस होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन दे देते हैं, चलो वो बाद में करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला। अभी हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट वाला बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद है पेट्रोल एंड ड्राइवर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन bribe paid to policeman, this is not allowed, it is not allowed। 2,000 will be added back। दिवाली एक्सपेंसेस, दिवाली एक्सपेंसेस में है कि include 20,000 as personal expenses, so personal expenses वाले दिवाली expense नहीं होंगे allowed, so 20,000 will be added back। ठीक है, फिर electricity expenses allowed। Municipal taxes paid for the house property, it is related to the house property, it is not related to business, so MT paid for house property is not allowed, 45,000। देखो ना, ये हाउस प्रॉपर्टी में मिलते हैं, ऐसे थोड़ी है कि एक चीज तुम बिजनेस प्रोफेशन में भी ले लो और फिर तुम हाउस प्रॉपर्टी में भी उसकी डिडक्शन ले लो, वो वही मिलती है। Then stationery expenses allowed, depreciation on asset is allowed, net profit। So हमारे सारे expenses add हो गए which are debited but not allowed to be debited, not। ठीक है, अब हम करेंगे less expenses
which should be debited. वो है हमारा depreciation on car. ठीक है, so depreciation on car at the rate of 15% per annum. It was not charged earlier. So हमारी कितने की थी कार? 6,80,000 का 15%. 6,80,000 का 15%. ठीक है, so 1,02,000. उसके अलावा कोई ऐसी और इंफॉर्मेशन नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन में जिसमें वो डेबिट होनी चाहिए कोई चीज. ठीक है, इसके बाद हमें ऐड करनी है कोई इनकम इन केस इट इज इनकम विच शुड बी क्रेडिटेड. ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इसको ना मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ पहले, माइनस होगी ना ये वैल्यू. फिर है हमारी लेस इनकम which are credited but not allowed to be credited. ठीक है, वो सारी इनकम हमें सब्ट्रैक्ट करनी है जो क्रेडिट हो रखी है हमारे अकाउंट्स में बट होनी नहीं चाहिए. अब देखो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है. सेल इज फाइन, क्लोजिंग स्टॉक कर चुके हैं हम. डिस्काउंट रिसीव्ड इज फाइन. रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, it is directly related to house property, so it will be subtracted. Rent of house property 1,20,000. Profit on sale of land, it's a capital gain, it's not business or profession income, so it will be subtracted. Profit on sale of land, this is 50,000. ठीक है, अब देखो इसके अलावा कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन ऐसा तो नहीं है कुछ बच गई है. ये तो डोनेशंस की बात कर रहा है. आई डोंट थिंक सो. ठीक है, सो ये हमारा हो गया. अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर? पीजी बीपी प्रॉफिट्स इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी. ठीक है, सो बस कैलकुलेट कर दो इसको. इन तीनों का सम, इन सब का सम, then this, then this, then this. So 7,27,000 is the income under the head PGBP. ठीक है, this is your answer. You have to start with net profit. You have to add all the expenses which are debited but not allowed to be debited. Then you have to subtract all the expenses which should be debited. Then you have to add income which should be credited, and you have to less income which are credited but not allowed to be credited. So this is your PGBP income. इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें हमें हाउस प्रॉपर्टी का भी रेंट दिया हुआ है तो हम उसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू. ठीक है, let me just match the solution I have. So 7,27,000 is correct. ठीक है, सो आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हो. अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें सब कुछ कैलकुलेट करना है
सो आपको ऑलरेडी रेंट गिवन है, आपको म्युनिसिपल टैक्सेस पेड गिवन है, आप एनएवी निकाल सकते हो, उसके बाद आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे सकते हो, यू विल गेट योर एचपी इनकम। सिमिलरली आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज आल्सो गिवन विच इज 50,000। सारी आपकी इनकम ऐड हो गई, उसके बाद आपको डिडक्शन भी गिवन है। कितना डिडक्शन है? 49,500 का। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड 49,500। So there are donations which are available under section 80G and 80GA. इसमें क्या है? There are special relief funds and charitable institutions जिसके अंदर contribution करने से हमें deductions मिल जाती है, ठीक है? And there are a list in which 100% donation is allowed as a deduction. In some cases, only 50% of the donation is allowed as deduction. ठीक है? सो दीज आर, अगर आप देखोगे ये जो सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, इन सब में 100% डिडक्शन इज अवेलेबल। अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, जिला साक्षरता समिति constituted in any district under the chairmanship of the collector of that district, fund set up by a state government for the medical relief to the poor, national illness assistance fund. So these are the names of the funds in which 100% of your contribution will be allowed as deduction. ठीक है? इसमें ये हैं आपके चार जिसमें आपको 50% मिलता है, ठीक है? अगर आप जैसे लाख का करते हो तो आपको 50% उसका मिलेगा, 50,000 मिलेगा। ये आपके जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, वो क्या था? नेशनल रिलीफ फंड, ये है ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। ये चार ऐसे हैं जिसमें खाली 50% डिडक्शन विल बी देयर, ठीक है? और 80GA है, दिस इज फॉर डोनेशंस मेड टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे कहीं पे आप करते हो कंट्रीब्यूट तो आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है? डोनेशन कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ अ चेक और बाय ड्राफ्ट और इन कैश, हाउएवर कैश डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 10,000 आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, अगर कैश में कर रहे हो तो, ठीक है? अगर आप बैंक के किसी और मीडियम के थ्रू कर रहे हो तो कोई लिमिट नहीं है। 100% of the amount that is donated or contributed is considered as eligible for deduction. ठीक है? So there are two sections which are specifically talking about the contribution in certain uh, funds or uh, kind of committees or educational institutions in which the contribution made can be qualified as a deduction. ठीक है? Now we will move to next question. I hope this question is clear to everyone. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? This is second illustration. Mr. X submits the following receipt and payment account for the year ending 31st March 2021. Calculate his PGBP income. ठीक है? So in this question हमें क्या given है? Receipt and payment account, cash account given है, ठीक है? So opening cash है, closing cash है और बाकी सारे expenses हैं और incomes हैं, ठीक है? ये इसकी additional information. A patient of Mr. J has gifted him a watch worth 11,000 in appreciation of his services done. This has not been recorded. Mr. J is owner of big house. ये J और J same ही है. Is owner of big house. Ground floor is used for his own clinic. First floor is self-occupied and second floor is let out for rupees 11,000 per month. Sale of medicines includes medicines of rupees 4,000 which used by the family of Mr. J. Cost of this medicine is rupees 3,600.
Surgical equipment and cuts are to be depreciated at the rate of 15% per annum. Diwali expenses includes 50% as personal expenses. 25% of the car used is for personal purposes. Doctor has paid professional tax of rupees 200 per month because of his practice. This amount has not been recorded in the books of account. Doctor has received 5,000 as interest on debentures. This is not recorded in the books of accounts. ठीक है. अब हमें बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, हमें कोई प्रॉफिट के फिगर तो गिवन नहीं है, ना कोई इनकम के फिगर गिवन है. तो हमें खुद से कैलकुलेट करना है कि क्या सारी इनकम्स हैं इसकी और सारे क्या एक्सपेंसेस हैं इसके. तो मतलब हमें खुद ही कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो सबसे पहले हम सारी इनकम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है, सो सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो नहीं होगा, ये इसकी सैलरी इनकम है. हम इस टाइम पे खाली पीजीबीपी इनकम देख रहे हैं. अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो सैलरी उसको वहां से मिल रही है. इट इज हिज सैलरी इनकम. कंसल्टेशन फीस, तो कंसल्टेशन फीस उसकी इनकम है बिजनेस की, 2,95,000. उसके बाद इनकम फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर, ये भी उसकी इनकम है ऑफ 1 लाख. उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी रेंट रिसीव्ड हमें नहीं करना है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द हाउस प्रॉपर्टी हेड. सेल ऑफ मेडिसिन, वन लाख. और यहाँ पे कुछ सेल से रिगार्डिंग कोई चीज भी थी. सेल ऑफ medicines includes 4,000 which used by the family of Mr. J. So 4,000 इसमें से subtract होना चाहिए. ठीक है, so it will be 1 lakh minus 4,000. राइट, हम पर्सनल चीजें नहीं लेते तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड. इसके अलावा एक पेशेंट ने उसको वॉच दी हुई है इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विसेज. तो हमने ऑलरेडी ये पॉइंट किया है कि जो भी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो देता है, अगर किसी बिजनेस या प्रोफेशन को अगर कोई देता है तो वो इंक्लूड होता है. सो वॉच 11,000. ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये वाला चीज भी नहीं आएगा बिकॉज दिस इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना. Mr. J is owner of big house. Ground floor is used for his own clinic. First floor is self-occupied and second floor is let out for rupees 11,000 per month. मतलब एक हाउस का जो तीसरा हिस्सा है ना, जो ग्राउंड फ्लोर है, सिर्फ वही बिजनेस और प्रोफेशन उसके प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है. बाकी फर्स्ट फ्लोर पे वो खुद रहता है और सेकंड फ्लोर उसने रेंट आउट किया हुआ है. तो जो भी खर्चा वर्चा जो भी चीज होगी उसका 1/3 ही लगेगा बस, क्योंकि दैट इज ओनली रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन. अब हमें सारे एक्सपेंसेस देखने हैं जो कि रिड्यूस होंगे. अब परचेज ऑफ मेडिसिन इट विल बी अलाउड, बट इसमें से कुछ पोर्शन है जो वो पर्सनल एक्सपेंसेस थे. सेल ऑफ मेडिसिन इंक्लूड दिस. कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज 3,600. उसकी फैमिली ने यूज किया है, तो हम ये 3,600 इसमें से करेंगे. सेल्स में से पूरा 4,000, लेकिन कॉस्ट जो मेडिसिन परचेज करी है उसमें से 3,600. ठीक है, सो 60,000 माइनस 3,600. ठीक है, डिपॉजिट्स इन पीपीएफ अकाउंट.
दिस इज अ डिडक्शन बेसिकली जो 80C में मिलेगी. सो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इसको हमें नहीं रिड्यूस करना है. म्युनिसिपल टैक्सेस आर रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, वो भी नहीं आएगा. परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं आएगा, इसका डेप्रिसिएशन आएगा. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन. अब हमें सिर्फ वही चीजें लेनी है जो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले सकते हैं. ठीक है, अभी पुराने वाला क्वेश्चन नहीं है कि हमें जो जो ले रखा है उसको ऐड ऑन करना है और जो नहीं ले रखा उसको सब्ट्रैक्ट करना है. अब हम सिर्फ वही स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो इनकम टैक्स के अंदर अलाउड है. सो डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स कितना बताया है रेट. Surgical equipments are to be depreciated at the rate of 15% per annum. So 15% of 2 lakh. $30,000. Then salary wages paid तो आएगा ही. कितना है? 80,000. देखना कुछ सैलरी वेजेस में था तो नहीं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन. कार का है कुछ, दिवाली एक्सपेंसेस है. ठीक है, दिवाली एक्सपेंसेस 40,000 और दिवाली एक्सपेंसेस में क्या बोला है 50% इज फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस. ठीक है, सो कितना था दिवाली एक्सपेंसेस 40,000, इसका 50% 20,000. टेलीफोन एक्सपेंसेस 20,000. वाटर एक्सपेंसेस 500. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 9,000. Then car purchased, so depreciation on car basically. ठीक है, सो कार के बारे में एक इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि 25% ऑफ द कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस. ये ना कार था ये, आई थिंक सर्जिकल इक्विपमेंट एंड कार होगा. यहाँ पे कट क्या होता है, आई थिंक इट्स मिसप्रिंटिंग. इट शुड बी कार. तो 15% डेप्रिसिएशन रेट है, लेकिन कह रहा है कि 25% जो है वो पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज होती है. इसका मतलब 75% ही है जो इस प्रोफेशन के लिए यूज होती है. तो देखो कार कितना था 4 लाख. सो 4 लाख into 15% for only 75%. 25% हम नहीं लेंगे जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस की वजह से. तो खाली 45,000 अलाउड होगा. ठीक है, I hope this is clear क्योंकि 25% is for personal expenses, we don't have to take that. हम खाली 75% ही लेंगे. Then salary of driver. अब जो ड्राइवर है उसकी सैलरी को भी हम 75% ही लेंगे. रीजन बीइंग 25% उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है. ठीक है ना, जो चला रहा है गाड़ी और जो गाड़ी का अगर 25% पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है तो उसके ड्राइवर की जो सैलरी है वो भी 25% वहीं यूज हो रही है. 75% ही प्रोफेशन में यूज हो रही है. देन पेट्रोल एक्सपेंसेस. पेट्रोल एक्सपेंसेस का भी सेम ही हाल है क्योंकि ये भी कार में ही यूज हुआ है. तो इसका भी हम खाली 75% ही लेंगे. $13,500. मतलब ये तीनों चीजें कार से रिलेटेड है. इन तीनों चीजों का हमने 75% ही लिया. उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वी नो वी डोंट हैव टू टेक इट. इंटरेस्ट
on loan paid for house property, this is also we don't have to take it. Closing cash balance. इसके अलावा just check if we have missed down anything. नहीं, interest on loan, sorry, house property का हम लेंगे third portion. I just realized this second point कि third जो चीज है वो प्रोफेशन है, तो हाउस प्रॉपर्टी का हर तीसरा हिस्सा हमें लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द प्रोफेशन. ठीक है, सो जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी है इसका 1/3 वी विल टेक इट. ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ कार है हाउस का तो म्युनिसिपल टैक्सेस ऑल्सो फिर वी विल टेक इट, क्योंकि तीसरा हिस्सा तो है ना हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, तो ये हमारी इसी में ही आएगा. सेम ही होगी इसकी भी वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय 3. ठीक है, इसके अलावा ये तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव्ड है, इसका तो हमारा कोई लेना देना नहीं है. एक्सपेंसेस में जो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड हुए हैं उसका भी थर्ड पोर्शन हमारा होगा. उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट इज ऑल्सो विल बी टेकन. ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट डन, थर्ड डन. वाली दिस, ये जो प्रोफेशनल टैक्स है दिस अमाउंट नॉट बीन, आई थिंक ये प्रोफेशनल टैक्स भी सैलरी की इनकम में जाएंगे, वहां पे इसको डिडक्शन मिलेगी, ये पीजीबीपी में नहीं आएगा. दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दिस इज फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, सो दिस इज हिज पीजीबीपी इनकम. सम ऑफ ऑल द credit payments subtract sum of all expenses. This is the answer. I am little bit doubtful about the rounding off. Just let me match. $173, $676. एक चीज क्या गड़बड़ हुई है फिर? Let me check what information I have missed out. I think this is correct. 5,02,000. This has matched. Purchase of medicine is also correct. Anti-paid we have taken. Surgical, that is fine. Car का भी ठीक है. 80,000 is fine. 2020 is fine. Water expense is also fine. 9,000. Okay. Professional taxes paid have been taken here only. I think it's up to you. Reason being, this can also be taken under the salary income. क्योंकि आप लोगों को याद हो कि हम सैलरी में लेते ही हैं प्रोफेशनल टैक्सेस को, तो दोनों में से एक जगह कहीं पे लेना पड़ेगा आपको, चाहे आप वहां पे लीजिए चाहे आप यहाँ पे लीजिए. ठीक है, आपकी इनकम 2400 से तो डेफिनेटली बढ़ेगी. ठीक है, वहां पे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, तो वहां पे डिडक्शन भी मिलेगा. तो आई थिंक इट इज बेटर टू टेक इट अंडर सैलरी इनकम ओनली इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अंडर पीजीबीपी, क्योंकि पीजीबीपी में तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, सैलरी में मिल जाएगा. और ये जो है इसको ऑलरेडी सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो मेरे अकॉर्डिंगली इट्स बेटर टू टेक इट अंडर द सैलरी हेड. ठीक है, नॉट under PGBP. This is the only I think the mismatching figure, otherwise rest everything is matching. ठीक है, अगर इसी में मैं 2400 ऐड कर दूंगी तो it will match. Subtract करना है 2400.
17366 कुछ और भी डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस है ये? $56,400. This is fine. 50,000 is fine. 45,000 is fine. 45,000 is fine. ये दोनों भी ठीक है. Then salary and wages is fine. And 20,000. This is fine. This is fine. This is fine. Everything is matching. तो कुछ points में पता नहीं क्यों आ रहा है. So this answer is correct. ठीक है. किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? क्लियर है सबको? आपको